જય જનપ્રીત, જય જિનેન્દ્ર. કેવું છે? બધું બધું બરાબર પહોંચી ગયા? હા, બધું બરાબર. જો છોકરાઓ તો હજુ થોડુંક સેટ થાય છે. જેટલેગમાં આવ્યું, બપોર ઊંઘ આવે એવું થાય છે. તો મને સેટ થઈ ગયું, હનીને હજુ નથી સેટ થયું. મને તો સેટ થઈ ગયું. હું તો એક જ રાત ગઈકાલ આખું ઊંઘ્યું, આજ સવારે આમ ફાઈન. અગર દિવસના તમે સુઈ જાઓ ને અગર તો પ્રોબ્લેમ થાય. અગર તમે રાતના એક સ્કીપ કરો then you are okay અગર રાત સુઈ જાઓ તો. મને વાંધો નથી આવ્યો. છોકરા હવે થઈ રહ્યા છે ધીરે ધીરે સેટ. It's okay, છોકરાઓ તો વાંધો નહીં. એક બે દિવસ પછી લાગે એ લોકો. હા. બરોડા પહોંચી ગયા? શું કહે છે? તમે બરોડા આવી ગયા? હા, વડોદરા આવી ગયા. અમે પહેલા દિવસ વડોદરા, મુંબઈ થી તરત વડોદરા, અમારી તરત જ ફ્લાઇટ હતી. ઓ ત્યારે જ હતી. ઓકે 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 હા, એટલે મુંબઈ ઉતર્યા અને તરત 4-5 કલાકમાં વડોદરાની ફ્લાઇટ હતી. એ ટર્મિનલ ઓકે પર. મને લાગ્યું તું હા બરાબર. પછી રિટર્નમાં તમે લોકો મુંબઈ હશે. રિટર્નમાં અમે મુંબઈ રોકેશું થોડું. બરાબર બરાબર. આ વીકમાં કોઈ વધારે છે નહીં. છોકરાઓ બધા રજા પર તો ક્લાસ રાખ્યું છે એટલે there will be people attending. હા, આજે તો પછી ઓછા લોકો હશે એમ શ્યોર. તમારા ક્લાસમાં તો રાજેશભાઈ છે. ક્લાસ 6 માં કોઈ નથી તો આઈ વિલ કમ્બાઇન 5 and 6. હા, એ મેં જ એમને કીધું હતું કે એ લોકો કમ્બાઈન કરવાનું કહેતા હતા અમને, ક્લાસ 6 અને 7. તો મેં કીધું કે કમ્બાઈન કરવાનું ઇફેક્ટિવ નથી. એના કરતા મેં કીધું એકવાર કુંજન ને મેઘાને તમે બોલાવી લો ક્લાસ 6 માં, એટલે કમ્બાઈન ના કરવું પડે. મેં આ લોકોને કીધું. રાઈટ, પણ ક્લાસ મેગા છે ને આજે નથી આવવાની એટલે પછી મારે ક્લાસ 5 ઓ લેવું પડશે. એવું છે. ઓકે, એવું હતું તો હા અમે જ એટલે કમ્બાઈન કરી દેતા ને. પછી મેં હેમેન્દ્રને કીધું કે હું 5 ને 6 કમ્બાઈન કરી દઉં છું. ના, મને એમ થયું એવું અમને વાંધો હતો કમ્બાઈન કરવા. મેં કીધું કે વી કેન કીપ ઇટ એઝ અ લાસ્ટ ઓપ્શન. મેં કીધું આ લોકો હોય અવેલેબલ તો કમ્બાઈન ના કરવું પડે એમ. મને એમ ના પૂછ્યું હેમેન્દ્રે એમ જ સીધું પૂછ્યું કે વન ઓફ યુ ટેક ધ ક્લાસ. એટલે મને એને 6 7 સાથે મિક્સ થશે એમ કીધું. સો આઈ ડિડન્ટ નો અબાઉટ ઇટ. એટલે પછી મેં સવારના હજી પણ મેં એને કીધું, એટલે મેં કાલે રાતના તો એને ના પાડી કે મેગા નથી તો હું ક્લાસ 5 લઈશ. તો એને મેં બી કોઈને ફાઇન કરવાની ટ્રાય કરી હશે. પણ પછી આજે સવારના મેં કીધું હું એક ચીજ ભૂલી ગયો, કમ્બાઈન કરવું તો મને કે 5 ને 6 કમ્બાઈન કરી દો. તેને કીધું યા ધેટ્સ ઓકે. ઓકે ઓકે. પણ તમારા ક્લાસમાં તો રાજેશભાઈ છે સો યુ શુડ બી ઓકે. બરાબર. અને અગેન મને પહેલા કીધું તો હું બીજલને પણ કહી દે કે બીજલ એક ક્લાસમાં વી કુડ હેવ એડજસ્ટેડ. હા. જસ્ટ લાસ્ટ મોમેન્ટમાં જ બધા યુ નેવર નો કોણ ક્યાં છે. રિતેશ થઈ ગયું મૂવિંગ? જય જિનેન્દ્ર. સોરી, શું કીધું? જય જિનેન્દ્ર. મેં કીધું મૂવિંગ થઈ ગયું, કઈ કામ હોય તો કે છે. હા ચોક્કસ. ના, મૂવિંગ તો નથી થયું હજી. પેલું કળશ ચડાવી દીધું, કળશ મૂકી દીધું. હા બસ. तब जी आप म्यूटेड है तो बोल रहे हैं तो हेलो। हाँ सर। हाँ, क्या डिस्कस कर रहे थे अभी आप लोग? नहीं सरोज जी, वो तो मैं यहाँ पे अभी आया ना, कल ही हम लोग यहाँ पे आए। कल सुबह में पहुंचे यहाँ वडोदरा आए। तो सिर्फ जस्ट अच्छा, मेरे इंडिया में आप? ऑब्जर्वेशन। हाँ, मैं अभी हम कल ही आए, अभी तो कल सुबह में ही आए हमें भी। चलिए, बढ़िया, गुड। हाँ हाँ हाँ। तो कुछ नहीं, बस ऐसे ही मैं तो सिर्फ बता रहा था इनको कि जैसे मैंने ऑब्जर्व किया इन जनरल कि लोग यंग हो या एजेड हो, सब काफी बीमार लग रहे हैं। यानी लग रहा है कितना यहाँ पे हेल्थ क्राइसिस है बड़ा इन जनरल। काफी काफी इन जनरल ऐसा लग रहा है, जैसे मैंने लोगों से बात की थोड़ा, और जो देख रहा हूँ कि लोगों में अर्ली साइन ऑफ एजिंग, ओबेसिटी, कुछ
घर घर में कुछ ना कुछ हेल्थ क्राइसिस है। तो ऐसा लग रहा है बहुत, यानी वो एक टाइप का एपिडेमिक है, हेल्थ क्राइसिस। लाइफ स्टाइल का बोलते हैं ना आप जो, तो लाइफ स्टाइल लोगों की थोड़ी सी यहाँ ऐसी है। फिर इंडिविजुअल भी डिपेंड करता है कि कौन कैसा है। तो ऑफ कोर्स वो बढ़ रही है बीमारी। इवन कोविड के बाद जो जो लगे ना, इंजेक्शन लगे, वैक्सीन लगी, तो उस वैक्सीन के कारण से तो वो तो है, इशू तो है वो। खाना खाने वाले। और फिर कर्म पे भी डिपेंड करता है कि सबकी कैसे कर्म उदय में आ रहे हैं। तो क्राइसिस है ये, मैंने भी देखा है यहाँ। चलिए, अपना तीसरा अधिकार चल रहा था, वैद्य वाला चल रहा था। हम लोग यहाँ पे तो अभी हम मोहिनी वैद्य का कर्म उदाहरण का। लिया था। हाँ, वैद का उदाहरण। हाँ, वैद्य का उदाहरण हमारा पूरा हो गया था वैसे। हाँ, हमारी चर्चा यहाँ चल रही थी कि सभी जीव दुखी हैं। और दुखी क्यों हैं? क्योंकि उनको विषय ग्रहण की इच्छा है। तो उनके विषय ग्रहण की इच्छा तो पूरी होती नहीं है। और अंतरंग में कषाय भाव है, तो उस कषाय भाव के कारण से वो लोग सदैव दुखी रहते हैं। अब इसमें हमारा एक ऑब्जर्वेशन चला था, हमने पढ़ा भी था, चैडाला के टाइम पढ़ा था हमने, कि जीव कोई स्थान से सुखी दुखी नहीं होता, या कोई पर्याय से सुखी दुखी नहीं होता। पर्याय एक निमित्त कही जा सकती है, लेकिन सुख दुख का मूल कारण मिथ्यात्व है, अर्थात जो उसकी उल्टी मान्यता जो होती है वो उसके सुख दुख का कारण है। विपरीत मान्यता ही उसके सुख दुख का कारण है। तो ऐसे ही यहाँ भी है। ये यहाँ पंडित जी ये बता रहे हैं कि ये जीव जिन पदार्थों में सुख है नहीं, जहाँ सुख था नहीं, जहाँ सुख है नहीं, उन पदार्थों में ही इज ट्राइंग टू फाइंड आउट द रियल पीस इन प्लेस, दैट्स अ रियल प्रॉब्लम। तो फिर उदाहरण भी दिए यहाँ। हाथी का उदाहरण दिया था, यहाँ मच्छ का उदाहरण दिया था। ये बड़े फेमस उदाहरण है, हमने पढ़े थे इनको, कि इस तरह से जो मत्स्य है वो फंस जाता है। इस तरह से हाथी कपट की हद कर स्पर्श इंद्रिय के लोग, इस तरह से पतंगा जो है वो अग्नि का स्पर्श करने के लिए मरण तक वो तैयार हो जाता है। तो यहाँ मूल समस्या पंडित जी बता रहे हैं वो कषाय की समस्या है। उस कषाय से सभी जीव जो हैं वो पीड़ित हैं। कषाय से सभी जीव दुखी हैं। और ऐसी इच्छा क्यों पाई जाती है? तो यहाँ कहा कि इस जीव को मोह के निमित्त से इसकी इच्छा पाई जाती है। तो कर्मों की अपेक्षा से हमारा दुख चालू हुआ था। मतलब टॉपिक चल रहा था हमारा संसार दुख और उसका मूल कारण। तो हमने मिथ्या दर्शन का देखा था कि किस तरह से मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम, ये ही सर्व दुखों के मूल कारण है। फिर कर्मों की अपेक्षा से हमने पढ़ा था कि मैं एक आत्मा हूँ और अनंत पुद्गल परमाणु में मेरा शरीर है। मैं नी ही केवल ज्ञान हूँ। ये जीव जानता नहीं है कि मैं नी केवल ज्ञान में हूँ मैं। और उस नहीं जानने की अवस्था के कारण से ये बहुत दुख उठाता है ये। तो कर्मों की अवस्था में था कि भाई ये जो स्थूल होना, क्रस होना, शरीर का मोटा दुबला होना, गंधवर्ण, ये तो पुद्गल का स्वभाव है, लेकिन ये अपना जानता है उसको। तो इसके दुख का कारण क्या है कि भाई ये जो पर्याय, जो संयोगी पर्याय है ना, जो वो संयोगी पर्याय तो पुद्गल की पर्याय है, लेकिन ये उन पर्यायों को अपना जानता है। अब जब ये उन पर्यायों को अपना जानता है, अपना मानता है, तो ये दुखी हो जाता है ये। तो इस
इसमें जो हमारा अधिकार चल रहा है, ये अधिकार का नाम ही हमारा है संसार दुख और उसका मूल कारण। कि एक तो संसार दुख क्या है और उसका मूल कारण क्या है। तो 3 शब्द हमने डिस्कस किए थे, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम, दर्शन, ज्ञान, चारित्र। कि ये इन चीजों के कारण से ये जीव सदैव दुखी रहता है। सुखी होने का इससे विपरीत मान सकते। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र सुखी होने के कारण हो सकते हैं। और फिर इनके सद्भाव में कैसी कैसी अवस्था होती है, वो हमने डिस्कशन चालू किया था। तो ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय से होने वाले निमित्त का हमने देखा था कि किस तरह से जो कुत्ते का एग्जाम्पल एक हमने पढ़ा था कि इस जीव को मोह के कारण से विषयों को ग्रहण करने की इच्छा होती है, और उन विषयों के ग्रहण होने पर उस इच्छा के मिटने से निराकुल होता है, तो आनंद मानता है। ये ऐसा बोलता है कि भाई जिस विषय को ग्रहण करने की इच्छा हुई, उस विषय का यदि मैंने भोग लिया, मैंने यदि उसका उपयोग कर लिया, तो मैं आनंदमय हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं, मुझे कोई दुख नहीं है। ठीक है। लेकिन वैसा तो होता नहीं है। फिर एक एग्जाम्पल आया था, फेमस एग्जाम्पल है, कुत्ता कुत्ता जैसे हड्डी चबाता है तो उसे खून निकलता है, और उसका स्वाद लेके वो ऐसा मानता है कि ये तो खून का स्वाद है। कुत्ते की पर्याय जो होती है वो अभक्ष पदार्थों का भक्षण करती है, तो उस पर्याय में उसको वो खून अच्छा लगता है, तो वो हड्डी में से तो निकला नहीं, वो तो वो तो उसके मुंह से ही निकला ना। तो ऐसे ही ये जीव जो सारे विषयों का स्वाद लेकर ऐसा मानता है कि अ, इन इन विषयों से स्वाद आता है। तो बोले विषयों में तो स्वाद है ही नहीं, आपने ही इच्छा की और आपने ही उसको पूरा मानकर आनंद मान लिया। लेकिन आप वो ये नहीं जानता कि मैं तो अनादि अनंत एक नहीं केवल ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ। तो जो मैंने नित्य देखा जाना, ये सब गेय मिश्रित ज्ञान होता है, और इसमें इसको विषयों की प्रधानता ही भाषित होती है। तो ये इसमें आया था। फिर हमने पढ़ा था कि इस जीव को मोह के निमित्त से विषयों की इच्छा कैसी पाई जाती है। तो इस जीव को विषयों की इच्छा तो ऐसी पाई जाती है कि मैं त्रिकालवर्ती पदार्थों को सूंघूं, मैं त्रिकालवर्ती पदार्थों को जानूं, मैं त्रिकालवर्ती पदार्थों को ग्रहण करूं। मतलब वो ऐसा मानता है कि मैं सारे संसार के सारे जितने पदार्थ है ना, उनको जानूं, सूंघूं, ग्रहण करूं, स्पर्श करूं। तो ऐसा तो संभव होता नहीं है, ये तो संभव ही नहीं है, इच्छा मात्र है। तो इच्छा का ऐसे मोह के उदय से इच्छा है इसको, और वो इसकी इच्छा सही नहीं है ना। तो चलिए पढ़ते हैं, पर इसको यहीं से पढ़ना था। आ, देखिए पेज नंबर, ये कुंजन जी कौन सा पेज है ये ये जो आपने सौरभ जी खोल रखा है? 65 है, जो वहां पे जो डॉग का जो एग्जांपल लिया था वहां पे, तो आई थिंक हम यहाँ पे थे, ये एंड पे यहाँ पे निमित्त और हाँ, डॉग मोह का का एग्जाम्पल के निवारण। बाद का पैराग्राफ है, डॉग के एग्जाम्पल के हाँ बाद का हाँ है। सर जी, तो हम कौन वही सा मैं निकाला है सुना सर, 65 पेज पे ही हैज द डिजायर वाला। दूं? हाँ, तो पढ़िए कुंजन जी, आप ही पढ़िए। He has the desire of knowing and enjoying all the objects of past, present, and future. I should touch all, taste all, smell all, see all, hear all, and know all. So much is the desire, but the power is limited to touch, taste, smell, seeing, and hearing. Only such objects which come into contact with the senses. Out of them, only a few are partly known and enjoyed, and a few are known partly through remembrance by mind, etc. Even this much materializes on meeting several external causes. Hence, the desire never gets fulfilled. Such desire can be fulfilled on can only be fulfilled on attainment of Keval Gyan, omniscience. अब यहाँ कितनी बढ़िया बात हुई। He has the desire of knowing and enjoying all the objects of past, present, and future. I should touch all, taste all, smell all, see all, hear all, and know all. So much is the desire, but power is limited to touch, taste, smell, seeing, and hearing only such objects which come into contact with the
सेंसेस। अब यहाँ कह रहे हैं पंडित जी हिंदी में यदि इसको देखेंगे तो उसमें लिखा है कि इसको इच्छा कैसी होती है। इसको इच्छा तो ऐसी होती है कि मैं सर्व को जानूं, सर्व को सूंघूं, सर्व का स्वाद लूं। स्वाद लेने में आपने देखा होगा कि जैसे अभी हेल्थ की बात चल रही थी तो प्रेरित जी ने बोला कि इंडिया में हेल्थ इश्यूज, यहाँ बहुत लोग बीमार दिख रहे हैं। हाँ, यहाँ बीमार दिख रहे होंगे क्योंकि इन लोग यहाँ की दिनचर्या बहुत धीरे धीरे करके सबकी बहुत बिगड़ती जा रही है। लोग कई फैमिलीज, मतलब जैन फैमिलीज देखो या दूसरी देखो, तो जैन फैमिलीज की बात भी करें तो वो लोग रात को 11-11, 12 बजे खाना खाते हैं और कोई उनका लिमिट ही नहीं रही। होटलिंग बहुत बढ़ गई है, रेगुलर सैटरडे संडे होटल पे जाते हैं वो लोग खाने के लिए। तो एक वो इशू आ रहा है। और क्या बोलते, ओबेसिटी भी इसलिए बढ़ रही है कि ओवर डाइट लेते हैं। सुबह नाश्ता कर लिया, फिर खाना खा लिया, फिर शाम को खाना खा लिया, फिर रात को चिप्स खा ली, और तो बहुत सारी चीजें खा ली, तो वो बढ़ेगी। तो क्यों साहब बोले, बहुत से लोगों को टेस्ट बहुत अच्छा लगता है कि मैं तो, उनको ऐसा लगता है मैं सब चीजों का टेस्ट ले लूं। मैं मतलब मेरे मेरे टेस्ट लेने से संसार की कोई चीज बचना नहीं चाहिए, उनकी ऐसी धारणा है। तो उस धारणा के कारण से वो मैं सर्व को जानूं, ये लिखा है पंडित जी ने कि मैं सर्व को जानूं, मैं सर्व को सूंघूं। तो भोजन के लोलुपी जो हैं वो निरंतर एक ही बात सोचते हैं कि किस तरह से मुझे सुस्वाद भोजन मिले। और उसे साउथ इंडियन डिश भी खाना है, नॉर्थ भी खाना है, ईस्ट इंडियन खाना है। फिर जो मांसाहारी लोग होते हैं तो वो तो, उनको तो खाने की कोई लिमिट ही नहीं है। वो तो एक प्राणी को खाओ, दो प्राणी को खाओ, छोटे प्राणी को खाओ, बड़े प्राणी को खाओ, समुद्र के जीवों को खाओ। तो पंडित जी यहाँ कह रहे हैं कि इसकी इच्छा तो इतनी भयानक है, इतनी ज्यादा इच्छा है इसकी कि ये ऐसा कहता है मैं सर्व को जानूं, सर्व को सूंघूं, सर्व को देखूं, सबका स्वाद लूं। तो बोले इसकी इसकी शक्ति तो जो लिमिटेड है ना इसकी तो, और इसकी इच्छाएं अनलिमिटेड है। शक्ति लिमिटेड है, इच्छाएं अनलिमिटेड है, तो बोले कैसे बने इसकी। भाई ये बॉडी में वो डिओड्रेंट लगाता है, सेंट लगाता है, इत्र लगाता है, खुशबू के पदार्थ लगाता है। क्यों लगाता है भाई? उसको सुगंध अच्छी लगती है। और कोई कुछ लोग इंद्रिय का विषय है ना। और किसी को मूवीज बहुत पसंद है, दिन रात मूवी देखता रहता है, तो उसे ऐसा लगता है मैं सब कुछ जान लूं। ये संभव नहीं। पंडित जी कहते हैं कि भाई आपकी शक्ति जो है वो लिमिटेड है, और ऐसी ऐसी लिमिटेड शक्ति में आपका जानना ज्यादा नहीं हो सकता, आपका भोजन ज्यादा नहीं हो सकता, आपका सूंघना ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि हम इंद्रियों में सीख है। लेकिन वो डिमांड नहीं है। इसकी डिमांड किसकी है? डिमांड तो मन की डिमांड है ना। मिथ्यात्व के कारण से पर पदार्थ में सुख माना है, तो वो तो इसकी इच्छा तो होगी। वो तो मतलब पंडित जी ने वहां हिंदी में आप देखेंगे तो एक शब्द प्रयोग किया है, इच्छा तो त्रिकालवर्ती विषयों को ग्रहण करने की है। मतलब इसे ऐसा लगता है कि मैं तो त्रिकालवर्ती, भूतकाल निकल गया है, वर्तमान है और भविष्य में जो आने वाला है, एक काम करूं, सर्व को देख, सर्व को सुकून तक। लेकिन इतनी शक्ति तो इसकी है, तो वो सबका जानना इसका हो नहीं सकता। हाँ, इतना जरूर है कि इसके जो सामने जो पदार्थ आते हैं, उन उन आने वाले वर्तमान पदार्थों को वो मात्र जानता है, और उसमें से कुछ इसको याद रहता है, कुछ नहीं रहता। मैंने लास्ट टाइम मिलने वाले हैं, वो लोग बोलते सौरभ जी मैं प्लेसेस, सारे एंशिएंट प्लेसेस सब जगह घूम चुका। इवन भारत नहीं, मैं पूरे वर्ल्ड की मैं सारे वर्ल्ड के कल्चर्स देखे हुए हैं। तो मैंने बोला फिर क्या है? तो बोले समस्या ये है कि मैं इतना घूमा अवश्य हूँ, लेकिन याद ही नहीं रह पाता। ऐसा लगता है फिर से वहां जाना है, फिर वहां जा, कुछ जगह जाके देखा तो कुछ जगह तो याद ही नहीं आया कि मैं यहाँ 8 साल पहले आया था, फिर से आया। जब तक मैं 8 साल में कुछ घूम पाता हूँ तो पुरानी 8 साल की यादें धुंधली पड़ जाती हैं, फिर से वो इच्छा जागृत हो जाती है। तो इसी चीज को लेकर पंडित जी ने कहा कि भाई इसकी इच्छा तो ऐसी है कि सबको जान लो। और वो ठीक है, वो जो थोड़ा बहुत जान लेता है ना, तो इसे याद बहुत कम रहता है।
ऐसे याद थोड़ी रह पाता है। भाई याद से मैंने बताया था कि हमारा क्षयोपम ज्ञान कैसा है, पंडित जी कहते हैं हमें याद नहीं रहता, हमारा क्षयोपम ज्ञान ऐसा ही कहता है। तो भले ही आपने कैसे इंद्रियों के भोग भोग लिए हो, लेकिन वो आपको याद नहीं रहते। यही कारण रहता है कि हमें बार बार उन इंद्रियों को भोगने की इच्छा होती है। तो कितना जानता है, बस इसके सम्मुख, इसके सामने जो विषय आते हैं ना, बस उतनों को ही जान पाता है ये उससे आगे नहीं जान पाता। इसके इसके आगे जो विषय आते हैं आंखों के सामने, उसको जान पाता है। इसे प्राप्त पर्याय की तन्मयता ही बोलते हैं। तो ये तो हमारा भी एक, ऐसे देखें तो एक रियलाइज सब्जेक्ट है कि उन्हीं को एंजॉय कर पाते हैं। लेकिन इसकी इच्छा वहां नहीं होती। इसकी नहीं है कि भाई मैं एक क्षण में आप सबको जान लूं, कैसे पॉसिबल है। तो उनने फिर कहा है पंडित जी ने यार कि partly known be enjoyed and the few are known partly through remember by mind, etc. Even this much materialize on meeting several external causes, hence the desire never gets fulfilled. Such desire can only be fulfilled on attachment or attainment of केवल ज्ञान omniscient. तो बोले आपको जो इच्छा है ना सबको जानने की, वो सबको जानने की इच्छा मात्र एक कंडीशन में पूरी हो सकती है कि आपको केवल ज्ञान हो जाए। तो इसमें आप लोग बताइए कि जो इन पंडित जी ने कहा कि सब जानने की इच्छा है, सब सूंघने की इच्छा है, देखने की, तो उन्होंने सही कहा या हम लोगों को ऐसी कोई इच्छाएं पैदा होती नहीं है? हाँ प्रेरित जी, आप बताइए, ये जो पंडित जी ने पॉइंट उठाया है ये क्या, कैसा है, ये सही उठाया है कैसा है? बहुत सही पॉइंट है सौरभ जी। इससे तो ये तो ऐसा है कि सबको ये बीमारी जैसे सबको है, हमको होता ही रहता है कहीं ना कहीं। जैसे घर घर पे रहते हैं तो भी होता है, अरे वीकेंड हो गया कहीं बाहर घूमने चले जाए, ये कर ले ये कर ले। कभी मन आराम से बैठता ही नहीं है। फिर हर कुछ ना कुछ महीनों में, हफ्तों में ऐसा हो जाता है, अरे यहाँ घूमने चले जाते हैं, वहां घूमने चले जाते हैं। फिर पहले तो अपने मम्मी पापा के टाइम पे तो लोग एटले वैसे भी वो लोग संतुष्ट रहते थे कि बड़ी बड़ी छुट्टियां तो कुछ सालों में एक बार लेते थे, कहीं बाहर वो अपने स्टेट से कहीं बाहर ने स्टेट में चले जाए, वो भी बहुत कम हो पाता था। पर फिर भी वो लोग खुश रहते थे। अब तो ये ऐसा हो गया कि साल में 2-3 इंटरनेशनल ट्रिप होती है, बाहर की ट्रिप होती है, फिर भी लोग खुश नहीं रहते हैं। तो ये बहुत नया नया घूमने की इच्छा है, ये रहती ही रहती है, और फिर भी उसे संतुष्टि नहीं मिलती है, ये भी देखा ही जाता है। और हाँ फिर और बराबर भी है। अभी डिजायर हो अभी जाती है ना, और भी डिजायर हो जाती है कि लोगों को भी देखते हैं कि अरे ये वहां पे हो क्या है, ये सोशल मीडिया का है जमाना है। तो वो देखा देखी भी हो जाती है, या ये वहां पे चले आए, वो ये इनका वो हो गया, अपना नहीं हुआ, ये वो सब। हाँ बराबर है। ये मतलब घूमने की इच्छा तो लोगों की बढ़ती जा रही है, कमी नहीं हो रही है। तो मैं खुद ही ऑब्जर्व कर रहा हूँ ये तो। मतलब ये केवल भारत की बीमारी नहीं, मैं वर्ल्ड वाइड ही देख रहा हूँ। जैसे आपके यहाँ तो वेस्टर्न वर्ल्ड में तो लोग रिटायर्ड हो जाते हैं, अर्ली रिटायर्ड हो जाते हैं, और वो एक वैन लेते हैं, वैनिटी वैन लेते हैं वो। तो उसमें सारी सुविधाएं रहती हैं उनकी उसमें, और वो बस खुद ही वैन चलाते हैं वो। और जहां मन होता है वहां रुक जाते हैं। वही किचन रहती है, उसमें बेडरूम रहता है, उसमें सोना खाना पीना गैस सब रहती चीजें। तो वो उनको बड़ा मजा आता है। वो कहते हैं मैं अपनी लाइफ को सार्थक बनाया। तो आप लोग, कई मैंने ऐसे ब्लॉग देखे हैं तो उसमें वो बोलता है कि इट वॉज माई ड्रीम विच हैज कम ट्रू। आई हैड अ ड्रीम दैट वन डे विल कम व्हेन आई विल जस्ट ट्रैवल अलोन, एंड मैं पूरा वर्ल्ड घूमूंगा इस गाड़ी से। तो वो एटलीस्ट यूएस यूके जहाँ का भी हो वो तो घूम ही लेता है, कंट्री तो घूम ही लेता है वो। तो ये जो पंडित जी ने कहा ना, सर्व को जानूं देखूं। हाँ कुंदन जी आप बताइए, आपके क्या विचार है? पंडित जी ने जो कहा है सर्व को जानूं देखूं सूंघूं, ये उन्होंने सही कहा है? और इसमें हमारी अवस्था कैसी हो रही है? सौरभ जी, ये बेसिकली जो इंद्रियों का भोग का ही उन्होंने समझाया है, और वो तो मतलब वो पूरी कषाय का ही कारण हमारे हो रहे हैं। और ये बढ़ता ही जा रहा है, इसमें कोई कमी तो होती नहीं जहाँ तक हम स्वयं अगेन जब तक और मुझे ऐसा लगता है कि जैन धर्म में ही उसमें उसके लिए बहुत अच्छे से समझाया गया कि वो ये मोह राग द्वेष को कैसे कम करे। और जिस तरह हमारे
मुनिजन और साधु और आचार्य ने जिस तरह से हमें समझाया है कि जब तक हम तप संयम नहीं करेंगे और ये नहीं करेंगे तो हमें रिस्ट्रिक्ट करना बहुत डिफिकल्टी हो जाएगा। तो इसके अलावा तो और धर्म के मार्ग में ही लगना इसका सोल्यूशन हो सकता है, नहीं तो हम बाहरी चीज़ों में ही घूमते रहेंगे। तो ये बहुत ही एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे कर्मों का, मतलब कारण जब हम ले रहे हैं तो इसको तो सबसे पहले एकदम फोर फ्रंट पे रख के एकदम अच्छे से समझाया उन्होंने। बहुत बढ़िया। तो मैं इस मामले में सबको बोलता हूँ, सोचता भी खुद के बारे में। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये मतलब सबके साथ ही समस्या है। हम लोग जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं, जिस संसार अवस्था में रह रहे हैं, तो ये इच्छाएं होना बड़ी स्वाभाविक है। होती हैं, कुछ हमें होती है, कुछ फैमिली को होती हैं। तो दीज आर नेचुरल डिजायर्स विच आर राइजिंग डे बाय डे। तो पंडित जी को उस समय भी ये पॉइंट पकड़ में आया कि इस जीव को मोह की वजह से क्या क्या इच्छाएं होती हैं। तो न इच्छा तो इसको ऐसी होती, सर्व को देखूं, सर्व को जानूं मैं। अच्छा, और ये कोई, हम देखते ना, हम कोई कोई घूम के ये सारी इंद्रियों के पदार्थों को यूज करके कोई सुखी नहीं होता। अभी तो वो और दुखी हो जाता है। कैसे हो जाता है कि ये तो हो गया, अब नेक्स्ट, नेक्स्ट लेवल क्या। तो यहाँ तो घूमना हो गया, यहाँ तो मजा आ गया, अब नेक्स्ट जगह के मजे लेंगे। अब वो बात ये है कि यहाँ, जब तक यहाँ के मजे आते हैं, टाइम निकल जाता है, वो भूल जाता है, फिर से नए मजे लेने उसको जाना है। तो अभी पहले, जो अभी प्रेरित जी ने कहा ना, पहले लोग इसलिए भी संतुष्ट रहते थे थोड़े कि वो थोड़े से अध्यात्म से कनेक्टेड रहते थे और सोशल एक्टिविटीज में थोड़े से बिजी रहते थे वो। अभी क्या हुआ कि जैसे मेट्रो सिटी में, भारत में भी देखेंगे तो यहाँ भी सोशल एक्टिविटी में ऐसे ऑब्लिगेशन नहीं रह गया। पहले रिश्तेदारी बहुत निभाते थे, ईमानदारी से डेडिकेटेड होते थे। अभी तो क्लब हो गया, तो क्लब तो क्या, अनजान लोगों का एक अड्डा है, और वहाँ कोई जवाबदारी नहीं है। वो तो पॉइंट ऑफ एंजॉयमेंट है, और रिश्तों में जवाबदारी होती है। तो वो वहां बिजी रहते थे, फिर मंदिर आदि के काम में व्यस्त रहते थे, समाज की सेवा में, इसमें। तो वो उतना नहीं। लेकिन अभी तो ये डिजायर डे बाई डे बढ़ती जा रही है। मतलब हम तो इंदौर में देखते हैं, हमारे इंदौर में इतने रिसोर्ट ऐसे खुलते जा रहे हैं कि कुछ कह नहीं सकते। और बहुत सारे तो मुझे पता ही नहीं है कि ये खुल गए, और न्यूज़पेपर में आता है या कोई बताता है कि भाई ये 200 करोड़ का, 100 करोड़ का, 20 करोड़ का ये एक रिसोर्ट खुला है, ये एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। तो हमें पता चलता है कि ये खुला है, और वो पूरा फुल पैक रहती है सारी चीजें। तो ऐसे ही रेस्टोरेंट, मतलब इंदौर में रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा है, खाने की चीजें बहुत ज्यादा है। तो वो रेस्टोरेंट, ये चीजें बहुत बढ़ रही हैं। क्यों बढ़ रही हैं? लोगों की डिजायर बढ़ रही है। और अभी जो हेल्थ की बात चले, तो इन इच्छाओं को रोकने का कोई बैरियर नहीं। तो वो हेल्थ इश्यूज आना चालू हो गए। और अच्छा, कषाय और केवल खाने की कषाय नहीं है, स्पर्शेंद्रिय की कषाय भी बहुत बढ़ रही है लोगों की। भाई मीडिया का जमाना है, तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो वहाँ उल्टे सीधे दृश्य देखा करते हैं। अब भाई पहले तो क्या होता था, गृहस्थ अवस्था में संतुष्ट रहते थे अपने। अब वो यहाँ वहाँ के दृश्य देखा करते हैं, तो उनको इच्छा हो जाती है भाई। अब वो इच्छा तो पूरी हो नहीं सकती, क्योंकि वो तो अनैतिक कार्य है। तो या तो ये कोई अनैतिक काम करता है, या फिर मन ही मन में कषाय जनित भाव करके अपने आप को दुखी करता है। तो ये जो कहा, सर्व को देखूं, सर्व को जानूं, तो ये सबकी समस्या है। क्योंकि पंडित जी ने पहले ही कह दिया कि ये मोह जनित समस्या है, तो आपको मोह कम करना पड़ेगा। तो अभी पंडित जी उसका उपाय बताने वाले भी, कि भाई इस समस्या से कैसे निपटा जाए, कैसे इससे बाहर आया जाए, वो उपाय बताने वाले भी हैं। लेकिन पहले समस्या तो समझ लें हम। तो उन्होंने कहा भाई, ये इच्छा तो आपकी ना कब पूरी हो सकती है, आप सर्वज्ञ हो जाओ, बस केवली हो जाओ, तो ही पूरी हो सकती है। इसके अलावा तो कोई दूसरा उपाय है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुंजन जी, आगे का पैराग्राफ पढ़िए। द डिजायर डज नॉट। सौरभ जी, एक मिनट आगे पढ़ने के पहले एक मिनट, एक बात है कि ये पहले ऐसा नहीं है कि अभी के टाइम में ही हो रही है, कंटिन्यूस ही चल रही है। जैसे पहले जमाने में जब राजा होंगे या सब होंगे तो दूसरे राज पे जीतने का और फिर वहाँ के जो विश्व भोग का, ये तो कंटिन्यू ही होगा, राइट। वो तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इंटेंसिटी और लेवल थोड़ा चेंज हो रहा है कि सोशल मीडिया के टाइम से वजह से अभी बढ़ रहा है। जैसे प्रेरित ने कहा कि टाइम के हिसाब से भी चेंजेस आ रहे, पर अप डाउन ही हो रहा है, वह यही मान्यता गिननी चाहिए, राइट। हाँ बराबर। ये अभी एक्चुअली में क्या हो रहा है, पहले राजा का होते थे, कुछ और लोगों का। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी ना एक एक बहुत स्पीड में है ये सारी चीजें, पता है, पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में ये चीजें बहुत स्पीड में है। एक तो
अवेलेबिलिटी ना बहुत जल्दी हो गई सब चीजों की। अब जैसे अ, आपके पता नहीं वो प्लेटफॉर्म है कि नहीं, हमारे यहाँ भी नया प्लेटफॉर्म चालू हुआ है, 2 3 4 साल हो गए। एक ब्लिंकिट करके है, एक बिग बास्केट करके है। तो आपको पता है बिग बास्केट की सर्विसेज जो है ना वो रिमार्केबल। मुझे कोई भी चीज मंगानी है मान लो, फॉर एग्जाम्पल मैं सब्जी बना रहा हूँ और मेरा टमाटर खत्म हो गया, तो मैं बिग बास्केट पे जाऊंगा, बटन दबाऊंगा, 1 किलो टमाटर। पता है वो 1 किलो टमाटर की डिलीवरी विद इन 10 मिनट्स देने आ जाएगा। सारी चीजें ऐसी, मतलब आपको कोई भी चीज चाहिए, वॉट एवर यू यू वांट। तो अभी अमेजोन के जमाने से भी जमाना आगे बढ़ गया। अब उसमें कुछ अच्छी चीजें भी लोग मंगाते होंगे, कुछ बुरी चीजें ही मंगाते होंगे। तो वो और फास्ट हो गया। तो मैं जब मंगाता हूँ चीजें तो मैं बड़ा सरप्राइज देता हूँ कि पता नहीं ये वही घर के बाहर ही खड़े रहते क्या होता। लेकिन उन्होंने ऐसा इको सिस्टम बना रखा है कि मतलब उनका प्रॉमिस है 10 to 12 मिनट्स में आपके यहाँ वो चीज देने आ जाएगा, वो कोई महंगी भी नहीं। तो वो कोई सुविधा नहीं हो रही है, वो लोगों को और दुविधा ही पैदा कर रही है। लोग अननेसेसरी और चीजें मंगा रहे हैं। तो पुराने जमाने की बात करें अपन, तो पुराने जमाने में भी होती थी, ऑफ कोर्स होती थी। राजाओं को तो अपना राज्य विस्तार करना, विस्तार विस्तार विस्तार, उस चक्कर मर भी जाते थे। फिर आप जैसे अगर नेट पे डालेंगे लखनऊ के जो नवाब होते थे, तो एक मतलब भारत में एक कमेंट है, मतलब सटायर है समझ लो। उनके तो नवाबी शौक है। तो नवाबी शौक एक एक कमेंट रूप में ऐसे लिया जाता है कि भाई नवाबी शौक कैसे होते हैं कि ये करते धरते कुछ नहीं है और इनका पूरा समय विषय भोगों में जाता है। तो मैंने तो एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, उसमें बता रहे थे कि जो लखनऊ के नवाब होते थे वो धीरे धीरे उम्र बढ़ती थी, 50 55 60 के होते थे, तो भोग की कैपेसिटी कम होती थी। तो वो रोज अपनी भोजन में ऐसी जड़ी बूटियां औषधियां लेते थे ताकि उनका जो है पावर बढ़े और वो भोग अधिक और ज्यादा कर पाए। तो भी कोई मरते मरते तक कोई उनकी संतुष्टि नहीं होती थी और वैसा होता था। चलिए आगे गौरव जी, पढ़ते हैं, अभी कुंजी पढ़िए। अभी एक वेब सीरीज आई है रिसेंटली, हीरा मंडी करके। अभी वो संजय लीला भंसाली ने बनाई है, बहुत फेमस हो गई है। तो उसमें एग्जैक्टली ये नवाब लोगों का ही दिखाया गया है कि जैसे उनको तवायफ पे कोठे पे जाते थे और उनकी पत्नियों को भी पता होता है कि ये लोग जाते हैं और बस पूरा दिन भोगों में वही पे उसमें रहते थे। तो ये पूरा कल्चर वहां पे दिखाया गया है, नवाबी कल्चर आपने जिसकी बात की ना, वो वेब सीरीज में दिखाया हुआ है। हाँ बराबर है वो। तो ये अच्छा दुखी रहते हैं, मतलब कोई सुख नहीं हो रहा है उनको। हमें ऐसा लगता है कि यार दूसरों को ऐसा लगता है बहुत सुखी होते हैं, कैसे होते होंगे भाई? भाई हमारा शरीर जिस चीज के लिए बना ही नहीं गया है, अब आप उससे वैसा काम लेंगे तो वो कैसे होगा? तो ये एक चीज की बात नहीं है, बहुत सारी चीजों की बात है। तो कुंजन जी ऑफ कोर्स पुराने समय में होता था, वर्तमान में थोड़ा हम ज्यादा देखते हैं क्योंकि आपस में मिलने जुलने वाले लोग भी हैं और हम थोड़ा वर्ल्ड चेंज भी हुआ है पहले से, अध्यात्म से लोग हटते जा रहे हैं और विषय भोग की तरफ जा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा अभी रिलेवेंट हो जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं, कुंजन जी पढ़िए। द डिजायर। The desire does not get fulfilled through the senses because of the state of sayopsha. So, owing to nimitt of moha, continuous desire of knowing and enjoying concerned objects through senses persist, due to which, getting perturbed, the jeev is suffering from misery. So much is the misery that even for knowing and enjoying a single object, he is not even afraid of death. As an elephant has vehement desire of embracing the artificial female elephant, the fish of tasting of meat attached with the fisherman's stick, the bee of enjoying the smell of lotus flower, the moths of seeing the color of lighted lamp, and the deer of hearing the melody of music, due to which even if instant death be sensed, yet they are not afraid of it. On one hand, death was sure if the objects were enjoyed, and on the other hand, misery of senses was felt to be greater if the objects were not enjoyed. Being afflicted from the agony of these senses, all jivas irrationally plunge into the objects of senses, just as some miserable person jumps from the top of the mountain. Jeeves earn wealth
by undergoing several type of pains, spend it for obtaining the objects of senses, and for acquisition of those objects, they knowingly go even to such places where death is sure to occur. They also indulge into acts of injury, etc., and involve into passions of anger, etc. तो इसमें पंडित जी ने कुछ एग्जाम्पल भी दे दिए यहाँ कि भाई दूसरे प्राणी कैसे कैसे इस चीज से दुखी होते हैं। तो पहले कह रहे हैं कि इसकी इच्छा तो डिजायर ऑफ दिस कैन नॉट बी फुलफिल्ड, इसकी इच्छा तो पूरी होती नहीं है, और इसको निरंतर इच्छा तो बनी रहती है, और इतना दुखी हो रहा है आकुलित होकर कि एक विषय को ग्रहण करने के लिए अपने मरण को भी नहीं गिनता। मतलब इतना दुखी हुआ ये कि वो एक विषय को ग्रहण करने के लिए अपने मरण को भी नहीं गिनता, और इसकी इच्छा कम होती नहीं है, निरंतर बढ़ती जाती है। फिर उन्होंने 5 एग्जाम्पल दिए, बड़े फेमस एग्जाम्पल है ये, और मतलब हम लोग शास्त्र पढ़ते हैं तो काफी टाइम से सुन भी रहे उन एग्जाम्पल्स को। लेकिन एक्सट्रीम, मतलब जो प्राणी अपने एक विषय को ग्रहण करने के लिए मरण तक को नहीं गिनते, उनकी बात है। जैसे कोई शराबी होता है ना, शराबी, उसे शराब की लत लग जाए तो वो नहीं गिनता, मरण को नहीं गिनता, वो उसे शराब चाहिए, वो चोरी करता है, वो अपराध करता है, वो देशद्रोही भी करने को तैयार हो जाता है, तो वो एक बार शराब पीने के लिए ऐसा कर देता है। तो यहाँ जो एग्जाम्पल लिए हैं वो बड़े फेमस एग्जाम्पल हैं। Due to which getting perturbed, the jeev is suffering from misery. So much is the misery that even for knowing and enjoying the single object is not and afraid of death. As an elephant has vehement desire of embracing the artificial female elephant. तो हाथी का एग्जाम्पल दिया, ये बड़ा फेमस एग्जाम्पल है हाथी का, कि वो हाथी जो रहता ना, अ, हाथी काम भाव के लिए फेमस है। हाथी नहीं, हथनी, मतलब वो पर्याय ऐसी है हाथी और हथनी की, तो इनको सबसे ज्यादा काम भाव का जो डिजायर होती है वो हाथी को होती है। तो इन जो में शेर है, हिरण है, और ये है, लेकिन हाथी है, और मनुष्य भी उसमें आ जाते हैं। तो मनुष्यों को नहीं है पिट्टू, हाथी, जो हाथी को पकड़ना तो बड़ा असंभव सा काम है, मुश्किल काम है। हाथी को कैसे पकड़े? जिस हाथी में 100 शेरों के बराबर बल हो, तो उसे पकड़ना तो एक मुश्किल काम हो जाता है, उसे पकड़ा नहीं जा सकता उससे। तो फिर भी उसको पकड़ना है तो कैसे पकड़ना है? तो ये लोग, जानकार लोग, उसकी कमजोरी जानते हैं कि भैया वो कैसे पकड़ा जा सकता है। तो वो लोग, वो ऐसे पकड़ा जा सकता है कि यदि उसको एक आर्टिफिशियल हथनी बनाई जाए और उसे रखी जाए, थोड़ी सी गड्ढे में रखी जाए, तो वो उसको देखकर उसे स्पर्श करने की इच्छा से वहां कूद जाएगा। जब कूदेगा फिर हम उसको जाल डालेंगे, पैर में बेड़ी बांधेंगे, और फिर हम जहां चाहेंगे वो चला जाएगा वो। तो वो उसको इतनी इतनी तीव्र इच्छा होती है कि हाथी को वो पकड़ा जाता है। फिर आ, बंसी का क्या बोलते हैं, मच्छ को बंसी में लगे, जैसे कि कोई जलचर जीव को पकड़ते हैं तो उसमें कोई मांस का टुकड़ा लगा देते हैं, तो वो उसको खा लेता है, तो उसके दांत मुंह में वो क्लिप फंस जाती है और वो पकड़ा जाता है। फिर कब भौरे का उदाहरण आया कि भौरा जो रहता है वो कमल को सूंघने की बहुत इच्छा होती है, तो वो कमल बंद हो जाता है, रात हुई और बंद हो जाता है, तो वो ही मर जाता है। फिर पतंगे को दीपक का वर्ण देखने की, भाई पतंगा जो रहता है वो दीपक का वर्ण देखता है और वो मर जाता है। हिरण की एग्जाम्पल आया है, हिरण को संगीत सुनने की, हिरण को संगीत सुना के पकड़ा जाता है। मतलब उससे कोई बांसुरी बजाए या स्पेसिफिक वैसा कोई संगीत बजाए तो पकड़ा जाता है। तो इच्छा तो इसकी इतनी है कि तत्काल मरण भाषित हो, तथापि
ये इसे विषय ग्रहण की इच्छा होती है, विषय ग्रहण करता है। यद्यपि ऐसे विषयों का ग्रहण करने पर मरण होता है, तथापि इसे इंद्रियों की पीड़ा जो है ना और अधिक लगती है। इसे ऐसा लगता है कि मरण हो जाए तो हो जाए, लेकिन मुझे कम से कम ये चीज तो मुझे मिल जाए, और ये चीज मिल जाए तो मैं धन्य हो जाऊंगा, ये चीज मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा बढ़िया। इसमें केवल अ, कमल का एग्जाम्पल लेके भंवरे को ही नहीं बुलाया, हमें भी बुलाया। हम भी विषयों के ग्रहण के लिए कितने दूर चले जाते। आजीविका का आता ही है ना कि भाई आजीविका करने के लिए जीव ज्यादा पैसा कमाने के लिए, यद्यपि कम पैसे में उसका काम चल सकता है, तो बोले वो जंगल में चला जाता है, फॉरेस्ट ऑफिसर बन जाता है। तो वहां पता है भाई जंगली जानवर हैं, चोर रहते हैं, और वो लकड़ियां चुराते हैं, तो बंदूकें चलती हैं। तो उसे कहा भाई आपका प्रमोशन करेंगे, आप उस जंगल में जाओ, तो वहां देंगे। ऐसे एक नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो इस मोह के उदय से इस जीव की इतनी भयानक इच्छा होती है कि ये उन विषयों को ग्रहण करना चाहता है, और मरण हो जाए तो हो जाए। म- मरण को स्वीकार करता है, और ये जानता है कि मेरा मरण होगा, तथापि वो मोह की वजह से इसको इच्छा इतनी तीव्र है कि वो मरण को भी नहीं गिनता। तो हाथी है, मच्छ का उदाहरण है, भौरे का उदाहरण है, हिरण का उदाहरण है। हम्म, तो इस तरह से पंडित जी ने हमें ये टॉपिक बताया है कि किस तरह से इस तरह इच्छा होती है। अभी मैं आज लेट हो गया था क्लास में आने में, मैं क्या ट्रैवलिंग कर रहा हूँ ना, तो लेट हो गया थोड़ा आने में। स्वरूप जी, इसमें एक आ, और इच्छा भी है, वो सेल्फी हम्म, कल्चर है। लोग सेल्फी लेते लेते गिर जाते हैं, फिर भी उसको उनको पता भी है कि यहाँ रिस्क है, फिर भी लोग सेल्फी लेने या फोटो लेने चले जाते हैं। ये हाँ भी ऐसा बिल्कुल, ही ये भी जोड़ा जा सकता है, जोड़ा जा सकता है बिल्कुल। काफी कितनी सारी घटनाएं हम सुन रहे हैं सेल्फी की, मरने की। तो वो मर जाते हैं, गिर जाते हैं, पहाड़ से गिर जाते हैं, वो नदी में गिर जाते हैं। और ये पूरी वर्ल्ड वाइड घटनाएं हो रही हैं, सब जगह घटनाएं हो रही हैं वाली। तो इतनी इच्छा है भाई, तुम सेल्फी आ गई तुम्हारी, तुम धन्य मानोगे अपने आप को। एक बार मोबाइल में फोटो खींचने के बाद, खींचने वाला तो दूसरी बार देखता नहीं है कभी। लेकिन नहीं भाई, मैं खींचूंगा, ये पॉइंट पे, ये नेचुरल सीन पे तो मेरी फोटो होनी ही चाहिए। तो वो ऐसा सोच के वो करता है वो वैसा। तो यहाँ पंडित जी एकदम मनोवैज्ञानिक तथ्य बता रहे हैं हमें हमारे जीवन का। क्योंकि वो सॉल्यूशन ही बताने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम बता, सॉल्यूशन बताएंगे। लेकिन ये डिटेल बताने से कहीं ना कहीं हमारा एक कंट्रोल तो आता है। क्या पंडित जी ने कहा है कि ग्रंथों में कहा है कि साहब इच्छाएं तो पूरी नहीं हो सकती, आप कुछ भी कर लो। तो मैं इच्छाओं को बढ़ाऊं और फिर अपने आप को सुखी मानूं उनकी पूर्ति में, तो अच्छा उपाय ये है कि मैं मोह को घटा दूं और इच्छाएं भी घट जाएंगी। ये एक सच्चा उपाय और अच्छा उपाय है। तो इस तरह से वो हमारी चर्चा चल रही है। अब हम लोग अगली बार मिलते हैं। आज मैं थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। चलिए, निर्वाण क्लास अपन। हाँ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जनवानी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। थैंक यू सौरभ जी। क्या जिनेंद्र।